We come here as a team of all party, very distinguished members of parliament, my colleagues. They're from various parties. Most of them, for me personally, it's a heavyweight delegation because most of them have served not just as members of parliament, but as important ministers in the government of India, some in very important departments which have influenced policy for various decades. And the whole idea of this entire Operation Sindoor, which you all have all read about, heard about, it was the wishes of the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, that this is an extension and outreach program. Because you read a lot in the social media, some factual things, some exaggerated things, but what really happened in Pahalgam, the truth should be told to the world. So there are 7 groups. Each groups have 5 to 7 members of parliament. They have various experts, and we all left on the 23rd and the 24th of May, and the trips, most of us will be back by the 3rd and the 4th of June. So within 10 days, every delegation will go. The outreach program is about 4 to 5 countries. We will try and reach out to as many people as possible, give them facts and figures of what really happened in Pahalgam. And this outreach program is not just to put up a fight against anybody. The fight is not against any individual. It is against terrorism. Because what is the legacy we want to leave our children? Why did you all migrate? Why do we all move? Who leaves their roots? Nobody wants to leave. Ghar koi nahi chhodna chahta. But you have come for a reason generations ahead, and you've made a life here. And we feel so proud that our Indians have come here and contributed to the economy, to good practices here. As a matter of fact, when we met the speaker today, he so fondly spoke about each one of you and said the job and wealth that is created even for Ethiopia by Indians. So they really value the Indian diaspora. So I really thank the Honorable Ambassador for making this evening so wonderful. So what I suggest is each of my colleagues will say a few words, and then after we all finish, if you have any questions, we gladly address each and every issue or whatever comes across in your mind, so that you're rest assured that you will be our ambassadors to tell the truth to all the people around you. And then we'd be happy to meet with all of you and spend a few minutes with all of you. So should we start with Anand Sharma ji, one of our most senior leaders? उद्देश्य आपको पता है, अभी भी जिक्र हुआ, जैसा राजदूत साहब ने, एम्बेसडर साहब ने कहा, आप तो इस पर पहले बैठक कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इसलिए किसी भी बातों को, घटनाक्रम को दोहराना मैं पूर्ण रूप से अनावश्यक समझता हूँ। सबसे बड़ी बात एक लंबे समय से हमारा देश आतंकवाद के निशाने पर रहा है, कई दशकों से। आई बार भारत ने संयम भी रखा पर मजबूती भी दिखाई, इस उम्मीद के साथ कि विश्व का जनमत भारत के पक्ष में होगा, जो हुआ, बार बार हुआ। मुंबई पे जब हमला हुआ था, भारत की संसद पे हमला हुआ था, पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। उस पर हमारी एजेंसीज ने काम किया, सोया नहीं भारत, समय लगा, पर एक की पहचान की, शनाख्त की, मुकदमे चले, अमेरिका में भी चले, सिर्फ पाकिस्तान में मुकदमे नहीं चले। जो उन्होंने आश्वासन दिया था विश्व को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, वहाँ क्योंकि उन्हीं की शरण में, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के इशारे पर ये हमले हुए। अभी भी भारत की सोच स्पष्ट है। भारत कोई हिंसा और युद्ध में विश्वास करने वाला देश नहीं। सदियों से हमारे देश ने, जो एक प्राचीन संस्कृति है, हमला नहीं किया, पर हमलावर का जवाब जरूर दिया, मुकाबला जरूर किया। हमारी फौजों ने इस बार भी बड़ी मजबूती से, निशाना उनका सिर्फ आतंकवादी संगठन थे। We had made it absolutely clear that we had not targeted
any civilian population, cities, or military installations. But India's attack was proportionate, calibrated, firm, and executed or delivered with precision. We are talking to the world in this globally outreach to sensitize, mobilize public opinion against terrorism and solidarity with the victims of terror, especially our country and all regions. आप लोग भारत के सब मैं कहूँगा प्रतिनिधि हैं, यहाँ आए हैं, काम करते हैं, आपकी अपनी उपलब्धियाँ हैं, अपना योगदान है, उसको हम समझते हैं, उसके प्रशंसा भी करते हैं और आप सबको शुभकामनाएं भी देते हैं। ये पूरा भारत जैसे कहा गया, आपके समक्ष सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल नहीं है, हिंदुस्तान की आवाज है। हम भारत की वेदना, भारत का आक्रोश दुनिया के बीच में लेके चले। यहाँ हिमाचल से, हिमालय से और दक्षिण तक जनप्रतिनिधि जो रहे हैं देश की राजनीति में, मैं हिमाचल से हूँ, अनुराग हिमाचल से है, मुरलीधरन केरल से है, पंजाब जो बहादुरों की जमीन है, सरजमीन, यहाँ से हमारे वरिष्ठ साथी मनीष तिवारी हैं, ये सोनियाल जी वो विक्रम की सानी जी हैं, लघु कृष्णा है, और पश्चिम से वो रणभूमि जो मराठों की फौज आती थी, देश पे हमला होता था तो लड़ने के लिए, वो वहाँ की बेटी ये बैठी है, सुप्रिया सूले। तो ये आवाज मुल्क की है, इस आवाज में मजबूती है, एकता है। हमारे प्रजातंत्र के अंदर अलग अलग पहचान है, जैसे देश के अंदर विविधता है, डाइवर्सिटी है, बहुधर्मी बहुभाषी हम देश है, उसी तरह से अलग अलग प्रजातंत्र में विचारधाराएं, सोच है, राजनीतिक दलों की अपनी एक पहचान है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। जब एक तरफ की सोच हो जाती है वो नहीं रहता, पर एक विषय ये ऐसा है जिस पे कोई दलगत राजनीति नहीं, हिंदुस्तान की आवाज एक है, यही कहने आए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Ambassador of India in Addis Ababa, other eminent colleagues who are in the delegation, and members of the Indian diaspora, namaskaram to all of you. It's a great delight for me to meet all of you, because during the last 5 years, from 2019 to 24, I have transited through Addis Ababa innumerable number of times. Being yesterday I was telling, Addis Ababa is the Frankfurt of Africa, because that's where anyone who goes to Africa has to transit through Addis Ababa. But due to various reasons, a formal bilateral visit didn't happen, even though I was in charge of Africa and the Middle East during the Narendra Modi II government. So that's why meeting all of you is happening for the first time. So even though it is late, better late than never. So I'm happy that I am able to meet all of you, because across the world, Indian diaspora is the strength of India. And Prime Minister has always been saying that you are the living bridge which connects the whole world with India.
And when we speak about Ethiopia, the relationship is very old. You have all been here since long, making India proud through your hard work, your achievements, your performance, contributing both to the economy of this land as well as your motherland. So let me first express my appreciation at the outset for your efforts as the members of the Indian diaspora. Friends, as mentioned, this effort that we have undertaken on the direction of the Prime Minister, it's an effort to inform, to update, to share the latest incidents with our partners and friends. At the multilateral level, Ethiopia has been a long-standing partner of India, connected civilizationally, historically, bilaterally, on the same page, multilateral forums, as well as by trade, economically. So it was but natural that when such a serious thing happens in India, we have to update our friends and partners. What is the thinking that is going on in India? What do the people feel about the incidents that happened? Update them so that today also many of the senior dignitaries with whom we had our interactions, they said that we have got the information through various sources, media, social media, but it was good that you all came and personally gave us the information. Perhaps these informations would not have come through media, sources of media. So this is the purpose, so that the whole world stands on the same page with India. Because there are contradictory news that floats across continents, among communities. What has happened and why is it? Why it has happened? Many people say about including Kashmir. Kashmir is a contentious area. You know that during the last 5 years, the progress that has been made in Kashmir. From 2019 onwards, more than 10,000 crores investment has happened. Kashmir and Jammu region, both the regions, there are 2 All India Institute of Medical Sciences. One coming up, one already functioning. So, like this, the development that is happening in Kashmir, that has led to tourism also improving. More than 2 crore people visited Kashmir in the year 2024. You should compare it with the earlier years where people were not at all prepared to go to Kashmir. So 2 crore people visited. So all these things, the pace of development that has happened in Kashmir, the neighbors, the Pakistan, wanted to halt that pace. The terrorism, the attack on Pahalgam, it was not annihilation of individuals, but it was to halt the pace of Kashmir. So these issues will have to be shared with the governments, and I would also request all of you, being members of the Indian diaspora, to share this information with your friends, with your colleagues, with your acquaintances, so that the whole community, the whole society stands on the same page with India. With these words I conclude. Namaskar. सबसे पहले तो मैं हमारे राजदूत साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बड़े ऋणी हैं कि आप सबसे रूबरू होने का, मुखातिब होने का उन्होंने आज हमें ये अवसर प्रदान किया। मैं आपका भी सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी व्यस्तता में से
समय निकालकर आज यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इथियोपिया और भारत के बहुत ही प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 2000 साल पुराने संबंध हैं और आप लोग इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए, उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए जो यहाँ पे अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हम सभी हमारे मित्र देशों को ये बताना चाहते हैं कि भारत एक शांति प्रिय मुल्क है। भारत ने अपने लंबे इतिहास में ना किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण किया, ना किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। पर अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है या भारत को आंख दिखाता है तो फिर उसका सुदृढ़ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और यही कुछ पिछले 1 महीने में हुआ। भारत में हर समुदाय के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग एक समन्वय बनाकर एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हुए आपस में मिल बांट के खाते हैं, आपस में रहते हैं। पर जिस तरह से पहलगाम में उस भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस तरह से धर्म के आधार पर चिन्हित करके लोगों को बर्बरता से मारा गया, उसका जवाब देना भारत के लिए अति आवश्यक था। और आज हम लोग सारे लोग अलग अलग राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं, हमारी अपनी अपनी विचारधारा है, हम एक दूसरे से बहुत तीखा वाद विवाद और संवाद करते हैं। पर जब भारत की बात आती है, जब भारत की एकता और अखंडता की बात आती है, जब भारत की प्रभुसत्ता की बात आती है, जब भारत के आत्मसम्मान की बात आती है, तो हम लोग सब एक होकर दलगत सियासत से ऊपर उठकर उस भारत माता को नमन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां जहां भी आप हैं, आप जो वास्तविकता है कि किस तरह से पिछले 45 वर्ष से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसका सच जरूर उजागर करिए। और उसके साथ साथ लोगों को ये भी बताइए कि ये अगर कार्रवाई ना रुकी पाकिस्तान की तरफ से, अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया, तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी सब निशान होगा। और जो हमारे भारतीय सेना की वॉर क्राई है, जो महान साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रचना, देहे शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मंते कभू न टरूं, न टरूं और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब आपकी औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं।
भारत शांति का संदेश देने हम आए हैं। आज इथोपियन लीडरशिप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी पार्टी लीडर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी पार्टी से मुलाकात हुई, जहां इंडिया इथोपिया का एक हिस्टोरिक रिलेशन पढ़ा मैंने कि 1950 में जब भारत पहला अफ्रीकन कंट्री में एम्बेसी खुली तो भारत के सरदार संत सिंह यहाँ एम्बेसडर बने, आपके ग्रेट 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 प्रेडेसर। और आप खुशकिस्मत हैं, इथोपिया, वी कॉन्ग्रेचुलेट दैट दिस कंट्री वाज नेवर ए कॉलोनी, बिकॉज इंडिया हैव सीन and now we are having the legacy of the colonialism and we are still facing what was left behind। और ये जब हो रहा है जो कुछ, ये उसी वजह से हो रहा है। वो कहते हैं ना, जख्म जाता है तो दाग छोड़ जाता है। फिर हम अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स गए, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का जो कमेटी रेजोल्यूशन नंबर 1237 या वट एवर, उसमें तो पूरा टेररिज्म एक्ट अफ्रीका में बना है। काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इलिसिट फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, ड्रोन्स, यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बाय टेररिस्ट, एवरीथिंग हैज बीन फ्लैग्ड देयर। और आर्टिकल 7B of the African Union Act on Terrorism provides for that AU can enter any country, any African nation, if they are not controlling, if they are not find bona fide to control the cross-border terrorism। एकदम मेरा अतीत में ध्यान गया जब अनंत शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, सार्क CCI का मैं चेयर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे। इंडिया ने सब 8 कंट्रीज को इकट्ठा करने में साउथ एशियन बहुत कोशिश की, बहुत वीज़ा फ्री कर दिए हमारे रिकमेंडेशन, इन्होंने कई मेड इन इंडिया, हर जगह हम गए, लेकिन मालदीव, अफगानिस्तान सब, लेकिन एक देश की वजह से वो सार्क जो है वो वन कंट्री हेल्ड होल सार्क एज होस्टेज। मैं आज सोच रहा था सार्क में आज सार्क होता एक्टिव काठमांडू, तो ये AU वाला कानून हम सार्क में भी बना देते और फिर देखते पड़ोसी मुल्क को कि सार्क की फौजें फिर नहीं होता तो AU वाला जो प्रोविजन है। तो भारत का आपको पता है जो ये चली जा रहा है 1947 से, जैसे हमारे मुरलीधरन जी अक्सर बताते हैं। तो आप देखिए वाजपेयी जी, जब आपको याद होगा कि फ्रेंडशिप बस लेके चले गए 99 में, हम भी वहाँ थे, लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, वो हो गया, आए 1-1.5 महीना स्याही अभी सूखी नहीं, कारगिल अटैक हो गया, वहाँ पता ही नहीं उनको कितने पावर सेंटर हैं, आर्मी अलग है, 4 coup हो गए, 26/11 हो गया, छत्ती सिंहपुरा में 27-28 सिखों को शहीद कर दिया, चलता ही जा रहा है। कुछ दिन बीते तो अब 0 टॉलरेंस है भारत की। लेकिन भारत का न्यूक्लियर किया तो भारत ने पहले ही लिख दिया खुद ही, सेल्फ डिसिप्लिन, नो फर्स्ट यूज, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी हमने श्रद्धा के फूल भेंट किए, नॉन वायलेंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत, तो उसके लिए सब हम इकट्ठे हैं। हमारे मुस्लिम भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है, कोई भी आपस में भेदभाव नहीं है। लेकिन इस टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, लेकिन पड़ोसी मुल्क इसको रिलीजन का मुखौटा पहनाने की कोशिश कर रहा है। वो हम कभी भी उसको अपने एफर्ट्स में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और जय भारत, जय हिंद। Thank you. Thank you. It's good to see all of you here. We've been hearing a lot about you for the last 36 hours. Wherever we went, whichever office we went, you know, they're always mentioning about great contributions that you are doing. That's the first thing. The second thing was, every office we went, even the highest officers like ex-Prime Minister, Speaker, whoever we met, they always talk about India as if they know India from back of their hand. They talk about various states, you know, regions and everything. The main reason when we found out was most of them either studied there or spent time there, or they had an Indian teacher who was actually teaching them. So it was easy for us
in a way, to get connected. And it will be much more easier, I believe, for you as a business people here, because the respect that you command as a fellow Indians is immense in this country. And you have actually taken it far higher with the activities that you are doing in the country. That we could see and we could hear from whoever we met. And coming to the delegation, I think a lot of, you heard a lot of senior colleagues speaking about it. They spoke in technical terms. I won't try to speak in the technical terms, but I'll try to speak to you in your language. So the delegation's reason, you might be thinking, what is why we are here? All that have happened was reasonable. There was some terrorists that are coming to India, and we have replied. But that's not how the world works, because there is some certain expectation from India. The expectation from India is that we are a non-violent country. We are a country that professes non-alignment. So there is some certain expectation. We also, our focus has been for the last at least 2 to 3 decades, improving our economy and getting, people out of poverty. That's our focus area. So all of a sudden something like this happens because we are a peace-loving country. So we might not feel, because we know we're plugged into what's happening, but at the leaders level, we need to come and explain to them what is the reasons behind it for the actions that we have taken. So that is the reason why we have come here. And it is being led by not someone in the treasury benches in the power, but actually led by someone who is in the opposition benches. This is the beauty of India that you are seeing here. So the first question that most of them, you might not ask, because we have replied, whatever Pakistan done, but most of the leaders are asking us, what is the reason of escalation? So we have to explain them that, the very senior people are there, they're explaining that the reason was Pakistan was supporting, harboring, financing terrorists, and whenever we give any sort of, any attack that have happened in the past, either Parliament, Kargil, Mumbai, we give enough evidence to them. But the problem is they don't act. So that is the reason why, we also run out of patience. Of course, we profess non-violence, we profess other things also, but we have to act. That's the reason why we've acted. So we have to inform you this, because you will be posed with all these questions, because you will be meeting a lot of government officials also. So that is the reason why India has acted, because we've given enough evidence. Even after this Pahalgam attack, we waited for 15 days for them to do something. They haven't done something. Only then we have only striked terrorist camps. We never touched any military bases or any civilian bases, civilians. So that is how we move forward. And the second question that we mostly you will also face is, why not diplomacy? Why can't you sit and talk? The problem with talking to Pakistan is, when it comes to India, we have a very vibrant democracy. We have, last 20-25 years, we have a vibrant democracy where prime ministers are finishing their 5-year terms. But if you go to Pakistan, the last 70 years, not a single government has finished the term. So diplomacy doesn't work. Civilian government to civilian government, if they talk, yes, diplomacy might work, but with the Pakistan, that's not working. And most of the time, military and other establishments are taking over. So that's why diplomacy is not working with that. So this is the second one. And coming to what you can do, yes, you might get these questions. You might please answer it. Please try to answer in this format. But the other thing we request you is, with regards to the social media platforms, there's a lot of news that is being spread. Please don't believe anything just like that. Cross-check, cross-check, cross-check. Don't just forward, don't just share. There are some values that India stand by. There are some ethics that India stand by. I've been seeing one of the posts that have been shared, which was very disheartening, wherein an Indian soldier was putting his foot on some casket.
someone dead, it's a graphic one, but that's not what India stands for. We're a peace-loving country. We'll stand by our ethics and values and everything. So, what we request you is, whenever you come across something on your social media, please cross-check. Only then, please try to forward that. Okay? Thank you very much. सब भारतीय एक छत के नीचे एक साथ हैं, तो ये तो कहना बनता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझसे पहले कहा गया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग क्षेत्र के सांसद इस दल में एक साथ आए हैं। हमारे दल, विचारधाराएं, क्षेत्र, भाषाएं सब अलग हो सकती हैं, लेकिन संदेश एक है, और वो संदेश कड़ा और स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। कोई आतंकवादी हमला भारत पर करेगा तो बदले में भारत करारा प्रहार करेगा और बार बार करता रहेगा अगर ऐसा होगा तो। मुझे दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिला। अधिकतर लोग ये कहते थे कि हमने भारतीय फिल्में देखी तो सॉफ्ट पावर की बात करते थे, हमारे एक्टर्स की बात, हमारे गानों की बात, दुनिया के बहुत सारे देशों में। इथोपिया में आके मुझे जो अपनी एक और सॉफ्ट पावर पर गर्व महसूस हुआ, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री से लेके स्पीकर से लेके किसी भी बड़े दल के नेता से मिले हों या सांसद से लेके किसी व्यापारी तक भी मिले हों, सबने कहा है हमें शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय टीचर्स ने और एजुकेशन सिस्टम ने किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है आपका। मेरे पिता प्रोफेसर थे, वो जब मुख्यमंत्री भी बन गए उसके बाद भी लोग उनको प्रोफेसर साहब ही कहते थे, क्योंकि उनको लगता था उनके जीवन को शेप करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। आपके हाथों से ना जाने कितने लीडर बन गए, तो आप लीडर्स के भी लीडर्स हैं, गुरु हैं आप। तो आप तो ये संदेश बहुत आसान तरीके से बहुत स्पष्ट दे सकते हैं कि भारत जो एक विक्टिम है आतंकवाद का, वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर द लास्ट मोर देन 4 decades, lost thousands and thousands of lives in the cross-border terrorism. And if you look at the past, look at the war of 65, 71 and Kargil, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, जहां सीधी सीधी लड़ाई हुई, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, हर बार धूल चटाई है। लेकिन उसको पता सीधे से लड़ नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो है, वो निहत्थे निर्दोष लोगों पर, इनोसेंट पीपल, उन पर इस तरह से अटैक करके जो टूरिस्ट बन के गए थे, छोटी छोटी बच्चियों के आगे, किसी पत्नी के सामने उसके पति को, बहन के सामने उसके भाई को सिर पे गोलियां मार दिया गया। कोई कसूर नहीं था। और जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने क्लेम किया कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, वो पाकिस्तान की लश्कर तैयबा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान को बता भी दिया। 2 वीक्स तक पाकिस्तान ने 14-15 दिन तक कुछ नहीं किया। फिर भारत ने वो किया कि 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को बम धमाकों से मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। अब ये काम तो पाकिस्तान को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वहां तो वही फंडिंग कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही लॉजिस्टिक, वही हैंडलिंग कर रहे हैं, वही हमारी सीमा के अंदर भेज रहे हैं, वही मरवाने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कहां उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम करेगा? भारत ने किया। लेकिन बदले में पाकिस्तान आर्मी ने भारत के निर्दोष लोगों पर अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर के रीजन में हमारे लोगों की जानें चली गई। फिर भारतीय सेनाओं ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को आखिरकार आना पड़ा, सीज फायर करने के लिए फोन करना पड़ा DG मिलिट्री ऑपरेशन को, DGMO को।
सवाल ये खड़ा होता है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कैसे करें। जो स्लेन टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी मारे गए भारतीय सेना के हमले में, उनको फेयरवेल देने के लिए कौन आया? पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर आए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, और तो और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया और फिर दफनाया गया। क्या किसी देश में टेररिस्ट के बॉडीज को नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है क्या? मेरा आपसे सवाल है, लपेटा जाता है क्या? इन एनी कंट्री डू यू सी एनी कंट्री रैपिंग द टेररिस्ट बॉडीज इन द नेशनल फ्लैग? डू दे? पाकिस्तान डिड सो। पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा, और यही चेहरा हमें दुनिया को दिखाना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सबने माना कि हम 30 साल से 30 ईयर से डर्टी जॉब करते आ रहे हैं। कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और सब राजनीतिक दलों के जितने मेरे साथी बैठे हैं, सब इसलिए एक आवाज में कह रहे हैं, और यहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर डिप्टी लीडर से लेकर जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की, कॉन्डोलेंसेस दिए हमारे भारत के लोगों के प्रति, भारत सरकार के प्रति, और हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए कहा। और यह भी कहा कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए और पूरी दुनिया में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा होकर करें। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में भी यहां पे देखा है कि किस तरह से इनके कई क्षेत्रों में लाखों लोगों की जानें चली गई, लेकिन अफ्रीकन यूनियन ने, जो सानी जी ने कहा, कि एक कानून भी बना दिया है, गाइडलाइंस है, जो यूएन नहीं कर पाए वो यहां पे लोगों ने कर दिया। इसलिए हमारा जो आपस में बातचीत हो रही है आज, आपको भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, व्यक्ति 1-on-1 बात कर सकते हैं, ग्रुप्स में बैठे वहां पर बात रख सकते हैं। 1 और 1 11 होते हैं कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कम कहलाऊं, बाज लड़ाऊं लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो हम तो इस देश में एक एक भी सब पे आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारी पड़ सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें सीधा तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। हमने पहले भी कहा था कि हम किसी के घर में घुसते नहीं, हम एनक्रोचमेंट करते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। आप सब आए, आप सब ने मेरी बात सुनी। अनिल जी, आपका, आपकी टीम का बहुत शानदार मीटिंग्स हुई और बहुत यहाँ पे सब दलों से, सब लोगों से बहुत बड़ा समर्थन मिला है आतंकवाद के प्रति। उसके लिए आपको भी साधुवाद, आपकी टीम का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।